Oh, this is me once again coming back on a video, okay, for a YouTube video. And this time is the topic taken from a chemistry class ninth, okay. The chapter name, chapter third. The chapter name is atoms and molecule, okay. We'll discuss about the exercise solution about this in this video, okay. What is the solution of exercise? Okay, chapter three, atoms and molecule, okay. All the topics will be related from atoms and molecules. So here's the first question given. A 0.4 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of proton and 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage composition of the compound by the weight. This is the question has been given. Okay, first of all, for the composition of compound, find out ना. सो जब भी कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड फाइंड आउट करने जाते तो ऑलवेज जस्ट फाइंड आउट कि हमें जिस कंपाउंड को फाइंड आउट करना है, जिस भी कंपाउंड में जिस भी एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है, हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है. जैसे यहाँ पे दिया है 24 ग्राम ऑफ कंपाउंड दिया है, तो गिवन कंपाउंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, वी कैन राइट हियर परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, गिवन कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड it is equal to, that is 0.24 gram. It is given here. So look here, that is the given compound is 0.24 gram, in which we can see here the given compound, it is a 0.24 gram. Okay, in this that oxygen is 0.096 gram, and uh, oxygen, and this is the compound given. Okay, and what is the that is the content analysis by boron. It is boron, and the second one is given here. What is the concept, what how many that is the oxygen in the given compound, 0.144 gram. So oxygen contains in the given compound 0.144 gram. It is okay. Now we have to find out that percentage composition of boron. So we can write here percentage composition of boron in given compound. Boron, percentage composition of boron in given compound is equal to, okay, so we can write here the percentage. So we can write here that the percentage composition of boron in the given count, mass of boron, I'm just erasing it, okay, writing here percentage composition of boron in given compound is equal to mass of boron in given compound upon total mass of compound. So now here is given mass of boron in given compound. Okay, it is written, it is being here यहाँ पे. So total mass of compound. Okay, so where we have mass of boron कितना है, that is 0.096 upon what is the given total mass of the compound, that is the 0.24 gram. 0.24 gram. So we'll got here 96 multiply 100 upon 24 multiply 1000, and here will be multiplied by 100. Okay, so now here is multiplied by 100. I'm writing here the triple zero. Okay, so 0 0 0 0 cancel, and there is a 0. 24 4 ja, there is a 96. 24 4 ja 96, and 4 10s are 40. So we got here 40 percentage. So in the given compound, the percentage of boron is, it is the 40 percentage. Now the same we have to find out what is the percentage of oxygen in the given compound if there is a compound given 0.24 gram. Okay, so let us find out by erasing it. दूसरा फाइंड आउट करते हैं कि अभी इसमें
इस गिवन कंपाउंड में 0.24 ग्राम में, अब इसमें ऑक्सीजन कितना है उसको फाइंड आउट करेंगे। हमारा बोरान यहाँ पे आ गया, ठीक है, चलते हैं फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट। सो नाउ हियर द गिवन कंपाउंड में जो परसेंटेज, ये जो कितना है, ये ऑक्सीजन कितना है 0.096, नो नो, ऑक्सीजन इज 0.144 ग्राम। सेम टू सेम वी हैव टू राइट द percentage composition of oxygen in given compound is equal to, what we will write here, in given compound is equal to mass of oxygen in given compound upon, that is the total mass of compound, this is not I'm writing, okay, proper, okay, but ये compound है, this is compound. So now we have here, what is the mass of oxygen in the given compound, that is 0.144 upon, and what is the total mass, that is 0.24 ग्राम। ओके, ग्राम जो यहाँ पे यूनिट होगा कैंसिल हो जाएगा, सो आई एम नॉट राइटिंग दैट, वो नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि ग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 144 अपॉन मल्टीप्लाई 100, रिमूविंग दिस डेसिमल, ओके, एंड नाउ हियर 24 मल्टीप्लाई 1000, रिमूविंग दिस डेसिमल, मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड नाउ हियर इज आल्सो 100। ओके, कैलकुलेटिंग मैक्सिमम, कैलकुलेट करते हैं, 0 0 रिड्यूस हो गया एंड 0 से 0 रिड्यूस, ओके, 24 6 144, so here we have 6 10 60%. So we can say that in a given compound, ये compound 0.24 ग्राम में अगर कार्बन एटम जो हमारा यहाँ पे है, बोरान अगर यहाँ पे 0.096 ग्राम है, तो परसेंटेज कंपोजिशन कितना आया था, दैट वाज द 40%, और ये कितना हो गया 60% अकॉर्डिंग टू द, so we can write here percentage of, I'm writing here percentage of oxygen in given compound 60%, and percentage of boron कितना है, that is 40%. So this is the solution for the question number first of exercise chapter 3. Okay, so now we'll move for the question number second. So here is the second question given. Okay, first we'll read it, okay, and after that reply what is the second answer. Okay, when 3.0 gram of carbon is burnt into in 8.00 gram oxygen, 11.0 gram of carbon dioxide is produced, what masses of carbon dioxide will be formed when 3.0 gram of a carbon is burnt in 50 gram of oxygen, which law of chemical combination will give you answer. तो हमको ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें तो प्रोड्यूस करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन हियर। ओके, दिया है कार्बन इज बर्न, ओके, C+O2 इट प्रोड्यूस CO2, ओके, वी कैन सी हियर 3.03 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, वी कैन राइट हियर दैट इज द 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन व्हेन combined with, and 8 to the 16 to the 32 gram, it produced 44 gram carbon dioxide. Okay, but when we solid, okay, like 4 3s are 12, 4 8s are 32, and 4 1s are 4. Okay, so suppose 3 gram of oxygen plus 8 gram of oxygen molecule just combined with, okay, they got here 11 gram of carbon dioxide it's producing. यहाँ पे 3 ग्राम वो तो मिला हमें, 3.0 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ओके, प्रोड्यूस बर्न होता है तो कितना मिला, 11 ग्राम यहाँ पे मिला। ठीक है, तो सपोज इट इज सेइंग, देखिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया है, दैट इज प्रोड्यूस व्हाट मासेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज बर्न। ओके, सो अगेन विल राइट हियर C प्लस ऑक्सीजन अगेन CO2। ओके, सपोज हियर द परसेंटेज ऑफ, यहाँ पे दिया है कार्बन अगर 3 ग्राम अगर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ये रिएक्ट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने रिड्यूस किया तो डिफिनेट प्रोपोर्शन जो यहाँ पे रेशियो आएगा, सिंपल रेशियो 3 ग्राम आएगा, इसके लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो यहाँ पे दिया है अगर अब ये 50 ग्राम
ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे रिएक्ट करता है, ठीक है, कार्बन के साथ, ये मिलकर 50 ग्राम ऑक्सीजन यहाँ पे है, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। हाउ मेनी, दैट इज व्हाट masses of carbon dioxide will be formed when 3 point, okay, so it will be same because we know that law of constant proportion. What is the law of constant? Any sources, okay, from no matter from it is formed, okay, always contain a same elements combined together in the same डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। तो हमारा डिफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन हमेशा, कार्बन और ऑक्सीजन हमें हमेशा किस रेशियो में रहेंगे, अगर रिएक्शन करेंगे तो दैट इज 3:8। अगर दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे दें, जैसे हमारे पास H2O है ना, H2O, व्हाट इज द मास ऑफ H2, दैट इज, यहाँ पे करेंगे 2 मल्टीप्लाई, दैट इज वी कैन राइट हियर 2 2 रेशियो, वी कैन राइट हियर 16, okay, 16. So now just reducing it 1 2 8 the 16, 1:8, okay. So always the hydrogen and oxygen will react in the ratio 1:8, 1:8. तो ऐसे यहाँ पे भी जो होगा ना, ये जो 3 ग्राम ऑक्सीजन कार्बन है वो रिएक्ट करेगा ओनली 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, बाकी रिमेनिंग जो रहेंगे हमें रिमेन्स अनचेड, रिएक्शन होगा ही नहीं उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा 50 है ना, तो हमारा यही रिएक्शन होगा, 3 ग्राम ऑक्सीजन प्लस 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल अगेन प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा जो ये 50 यहाँ रिड्यूस कर सकते हैं, 50 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 42। ये 42 ग्राम हमारा क्या रहेगा, इट इज नॉट लुकिंग हियर, सो 50 माइनस 8 इज इक्वल टू 42। 42, ये 42 क्या रहेगा हमारा, रिमेन्स अनचेंज रहेगी, रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये रेशियो, जिस रेशियो में वो रिएक्ट कर रहे हैं उसी रिएक्शन होगा, जिस रेशियो में है उसी रिएक्शन, कोई भी सोर्सेस इट इज फॉर्म ना। जैसे हम बात करते हैं H2O की एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, H2O, तो H2O हमेशा वेल से मिलेगा, ठीक है, सी से वाटर मिलेगा, ठीक है, सब कोई भी सोर्सेज होंगे, ठीक है, लेक से भी वही होगा, लेकिन उसके जो रेशियो होगा ना, रेशियो परसेंटेज ऑफ उसमें जो रेशियो होगा ना, मास का रेशियो हमेशा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, कार्बन का सेम रेशियो रहेगा, 3 ग्राम रहेगा, और ऑक्सीजन का भी 8 ही रहेगा, नो मैटर व्हाट इज गिवन ना, यहाँ पे 50 या 60 ग्राम दे दिए, नो मैटर करता है, यहाँ पे सिर्फ 8 ग्राम ऑक्सीजन ही ले रहा है, बाकी जो बचेगा वो अनरिएक्टेड रहेगा। सो दिस इज द, एंड आल्सो वी कैन से इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ constant proportion, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अगर आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो प्रॉपर तरीके से पता होगा व्हाट इज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज गिवन हियर। सो नाउ विल मूव फॉर द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज गिवन। So this is the question number 3 again. What are polyatomic ions? Give examples. Okay. So polyatomic ions is nothing. Okay. Ions which are formed, which is the combination of more than one kinds of atom. Okay. More than ions are formed by more than one kinds of atom. It is known as a polyatomic ions. So we can write here examples. Ions formed by more than one kind of atoms, it's called polyatomic ions. For example, we can write here SO4 2 minus NH4 positive, okay, PO4 2 minus CO3 2 minus are the examples of some polyatomic ions. Okay, this is an example which is given here. Ions formed by more than one kinds of atom. Okay, ions होंगे, ठीक है, लेकिन अगर different kinds of atom, here is you can see सल्फर दिया है, ऑक्सीजन दिया है, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम, ठीक है, इनके ऊपर चार्ज जो आया है दैट इज पॉलीएटॉमिक आयंस। NH4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन इज डिफरेंट एटम, phosphorus and oxygen phosphate ion, okay, that is, these are all the ions, okay, polyatomic ions. Okay, we'll discuss here the next question. So
this was something, okay. Sulfate, ammonia, phosphate, carbonate, okay. These are all given here, the polyatomic ions. Now moving for the question number 4th. So this is the question number 3rd given here. We'll see it, okay. Now it is looking perfectly. The question number 3rd given here. Write the chemical formula of the following, okay. So first question is given here, magnesium chloride. Magnesium chloride, okay. So we can write here, magnesium chloride is made from magnesium. First define करते हैं यहाँ पे किससे बना होगा, मैग्नीशियम और क्लोरीन से मिलके बना होगा मैग्नीशियम क्लोराइड, ओके. Let us find out the valency of both atom. Valency of both atom, okay. So what is the valency of magnesium? We can say that is the 2, because it belongs from a second group, and now it is plus 2, okay. What is the valency of chlorine? That is the minus 1. What? Minus 1. So what we will do here, that cross multiplication like those, so we will get here MgCl, okay. MgCl I'm writing here, but how to place? That is Mg, we can write here MgCl, MgCl. Now cross multiplication, here is a minus 1 and this is Cl2. This is the chemical formula, or we can say write chemical formula of the magnesium chloride, okay. First of all, you need to know the valency, okay. Valency, suppose I am taking example here, how the minus charge coming. Chlorine is 17, so what is the valency here? According to both, that is a 2 8 KLMN, okay. We can write here 2 8 and there is a 7. Next we'll fill here 7, okay. But for the valency, suppose it have to gain 8 electrons. अभी इसको 8 electrons चाहिए, ठीक है. इन द एंड सेल में कितने चाहिए, वैलेंस में कितना 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए. 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़े, डिफिशियंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है. तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, और जब जरूरत होती तो उससे माइनस चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए यहाँ पे कितना है -1. सो वी गॉट हियर MgCl2. सो दिस इज द chemical formula of magnesium chloride. Now moving the second one, calcium oxide. Calcium, this is the calcium. Second क्या है, कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिला होगा, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड. तो ये कैल्शियम प्लस किससे, ऑक्सीजन से मिलके बना होगा, ऑक्सीजन, ये दोनों से मिलके बना होगा कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है. जो इसके अंदर एलिमेंट्स थे हम उसको बाहर कर लिए, ठीक है. कैल्शियम और ऑक्सीजन से मिलके बना है, कैल्शियम एटम और ऑक्सीजन. तो यहाँ पे कैल्शियम का जो बैलेंस होता है वो कितना होता है, दैट इज द 2. कितना होता है, 2 + 2. ऑक्सीजन का कितना होगा, -2. कितना होगा, -2, ठीक है. तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, विल गेट हियर Ca2O2, or it will be cancelled, okay, plus minus, so we can write as a CaO. This is the chemical formula of calcium oxide. ये फार्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड का, यहाँ से कैंसिल हो गया. इन द एंड आई विल लेट यू नो दैट, अभी मैं इसके बाद इसको एंड करने के बाद बताऊंगा आपको कि बैलेंस में क्यों ऐसे ही 2 + 2 आ रहा है, ठीक है. विल डिस्कस अबाउट इट, बट लेट मी कंप्लीट इट. कॉपर नाइट्रेट, थर्ड वन है कॉपर नाइट्रेट. नाउ हियर वी हैव दैट इज द कॉपर नाइट्रेट. ये किससे बना होगा, कॉपर नाइट्रेट. तो यहाँ पे ये क्या है, कॉपर नाइट्रेट. क्या है, कॉपर नाइट्रेट. तो ये किससे मिलके बना होगा, कॉपर प्लस NO3 से मिलके बना होगा नाइट्रेट, ठीक है. लेट डिस्कस हियर इसका केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. बहुत इट इज़ नॉट मच. यहाँ पे NO3 का पहले हम अगर आयंस निकालना चाहे, ठीक है, क्या आयंस आएगा, जैसे हमने कॉपर का यहाँ पे लेता हूँ, कॉपर के पे क्या आएगा, दैट इज पॉजिटिव +1 आएगा. क्या आएगा, +1, ठीक है. और यहाँ पे NO3 की बात करते हैं. नाइट्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, दैट इज कार्बन. कार्बन 6 हो गया. हाइड्रोजन 1, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, एंड देयर इज अ नाइट्रोजन 7th ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है. ऑक्सीजन की बात करते हैं, इट इज द 8th ग्रुप. सो सपोज यहाँ पे ये 7th ग्रुप नाइट्रोजन हो गया, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन बिलोंग करता है 8 ग्रुप से, ठीक है. 8 ग्रुप. तो जब ऑड एंड इवन नंबर एक होगा, एक ऑड होगा, एक इवन होगा ना पॉलीएटॉमिक आयंस में, ठीक है. तो उसके ऊपर डायरेक्टली क्या आएगा, माइनस चार्ज. क्या आएगा, माइनस चार्ज, ठीक है. सो वी कैन राइट हियर दैट इज, तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दैट इज द, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 चार्ज आ जाएगा, ठीक है. दैट इज -1, ओके. सो
सो नाउ वी हैव ओके हाउ इट इज कम चेंज ओके। अगर यहाँ पे कोई भी एटम पॉलीएटॉमिक एटम्स पॉलीएटॉमिक आयंस है ना, तो अगर एक इवन एक ऑड आता है तो उस पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज माइनस निगेटिव, ठीक है। ओ यहाँ पे कितना आएगा +2 का कापर का कितना हो जाएगा +2 ओके। सो नाउ क्या करेंगे, सेम टू सेम चीज करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो नाउ हियर वी हैव Cu ओके, माइनस चार्ज है यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 आएगा, NO3 ठीक है, NO3 एंड क्या आ गया ट्वाइस। दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। हियर इज द नाइट्रेटेड इंग्रेडिएंट। अब कोई भी आप किसी भी चीज़ का फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर ओके। फॉर अगर कंफ्यूजन है तो क्लियर करते हैं यहाँ पे बहुत सारा चीज़, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जांपल हो गया, सपोज आई एम टेकिंग हियर एग्जांपल CO3 ठीक है। अब इस पे क्या चार्ज है, इस पॉलीएटॉमिक आयंस पे क्या चार्ज, कार्बोनेट है, इस पॉलीएटॉमिक पे चार्ज क्या आएगा। तो मैंने बताया चार्ज अगर डेवलप करना है तो आपको इस तरीके से करना है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन जो होगा कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, दैट इज द कार्बन से हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन, दैट इज 6, ये 6 ग्रुप से बिलोंग करेगा, ठीक है। सेकेंड क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा 8th ग्रुप से ओके। सो अगर दोनों इवन नंबर है ना तो हमेशा हमारे ऊपर उस पर चार्ज क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, दैट इज कार्बोनेट पे आ गया निगेटिव चार्ज। सपोज मैंने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया, हाइड्रोक्साइड, क्या ले लिया हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोक्साइड ठीक है। अब यहाँ पे सपोज मैंने हाइड्रोक्साइड को OH लिख दिया, ठीक है। अब नाउ आई हैव टू फाइंड आउट इस पे निगेटिव चार्ज आएगा कि +2 आएगा कि -2 आएगा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट हाउ वी कैन फाइंड आउट ओके। तो यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, यू हैव टू सी द पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है ना। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा 8th ग्रुप से ओके। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा, फर्स्ट ग्रुप से। मैंने बोला था एक ऑड रहेगा एक इवन, तो हमेशा क्या आएगा निगेटिव चार्ज, लाइक हियर NO3, इस पे निगेटिव तो इस पे क्या आएगा OH माइनस। सो दिस इज द कंफ्यूजन दैट यू, यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहता है, आप क्लियर कर सकते हैं। वेरी इजी मेथड टू फाइंड आउट द वट एवर द चार्ज विल कम ओके, वट एवर द ions will come on the particular polyatomic ions okay. Now let us understand next one okay. Now let us discuss here aluminium chloride, aluminium chloride. So this is the first okay, third one दिया है, that is fourth one, ये फोर्थ दिया है। और एल्यूमिनियम क्लोराइड किससे मिलके बना होगा, एल्यूमिनियम प्लस Cl से, क्लोरीन से मिलके बना होगा, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पे ठीक है, ये हमारा हो गया क्लोरीन, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्यूमिनियम पे कितने आयंस होते हैं, दैट इज द +3 ओके। वी कैन से यहाँ पे कितना होता है -1, सो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेगा क्या है यहाँ पे Al, यहाँ पे हो जाएगा Al, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन Cl3, this is the aluminum chloride, this is the formula, chemical formula of aluminum chloride. Now मूव करते हैं, that is calcium carbonate, last one. यहाँ पे दिया है that is the calcium carbonate, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम से बना होगा, कैल्शियम प्लस CO3 से मिलके बना होगा, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे क्या हो जाएगा +2 एंड यहाँ पे क्या आएगा, वंस अगेन हियर कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा 6th ग्रुप से, ऑक्सीजन कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा 8th ग्रुप से। तो यहाँ पे दोनों इवन नंबर है ना, इसके लिए अगर दोनों इवन नंबर आ गए ना, यहाँ पे दोनों इवन पोजिशन पे आ गए तो क्या होगा, यहाँ पे -2 चार्ज देंगे। और अगर एक ऑड और एक इवन है तो -1 चार्ज लेंगे, ठीक है। एक एक्सेप्शन होता है यहाँ पे PO4, इस पे क्या होता है 3 माइनस आता है, ठीक है। इसको हमें लर्न करना है बस, दैट इज मैंडेटरी टू लर्न ओके। यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है जिसपे 3 माइनस चार्ज आता है, बाकी सब पे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट सो हियर वी हैव -2 ओके। यहाँ पे एक इस तरीके से करते तो क्या हो जाएगा CaCO3, दिस इज द कैल्शियम कार्बोनेट, the formula of calcium carbonate. This is all the formulas has done. Now moving for the question number 4th okay.
Now moving for the question number fifth, it is given, okay, give the names of the elements present in the following compound, okay. क्विक लाइम को बोलते हैं हम लोग CO, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेट अस फाइंड इट। तो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम पहला लिख देंगे, दैट इज द कैल्शियम, कैल्शियम एंड सेकेंड इज अ ऑक्सीजन। ये हो गया फर्स्ट, ओके। सेकेंड है यहाँ पे, सेकेंड वन इज हियर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दैट इज HBr, HBr। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, दैट इज द हाइड्रोजन, और लिख सकते हैं ब्रोमीन, ओके। यहाँ पे हाइड्रोजन और ब्रोमीन से मिलके क्या बना, दैट इज द हाइड्रोजन ब्रोमाइड। यहाँ पे बेकिंग पाउडर होता है NaHCO3, तो किससे मिलके बना है, दैट इज द सोडियम। ये तीन चीजें से मिलके बना है, Na एंड हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये 4 एलिमेंट्स आएंगे, दैट इज द सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इट इज द मिक्सचर ऑफ सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट दिया यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट, दैट इज K2SO4। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं क्या क्या एलिमेंट्स है ना, दैट इज द पोटेशियम, फर्स्ट इज द पोटेशियम, सेकेंड इज द सल्फर एंड थर्ड इज द ऑक्सीजन। सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स विच मेक्स द कंपाउंड and which is here given. So this is the question number 5th, and now it was so easy. Now moving for the question number 6. So here the question number 6 given, okay, discussing here about the we have to find out here, it is looking clear. Now we have to calculate the molar mass of the following, okay. First of all, what is the unit of molar mass, that is the gram per mole, gram per mole, okay. Gram per mole, it is the unit of, so this was given gram per mole, okay. Now let us find out what is the molar mass. Molar mass is nothing but कोई भी कंपाउंड होगा ना, उसमें ईच एलिमेंट का जो मास मल्टीप्लाइड हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स गिवन, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करके ईच मास ऑफ ईच एलिमेंट ना इन अ गिवन कंपाउंड को ऐड कर देंगे, तो वही क्या होता है, मोलर मास। लेट अस फाइंड आउट हियर। सपोज हमारे पास यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन। पहले यहाँ पे देखेंगे कार्बन, कार्बन का मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास कितना होता है 12। लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल्स है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने हो गए, 24 मॉलिक्यूल्स। कितने हो गए, दैट इज 24 ग्राम। कार्बन का यहाँ पे 1 एटम में कितने ग्राम हो गए, 12 ग्राम हो गए मास होगा, ठीक है। मास कितना है 12, और यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स है, इसके लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो गया 24 ग्राम। सेकेंड थिंग क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया 2। नाउ क्या करेंगे, दोनों मासेस को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 ग्राम पर मोल। दिस इज द फर्स्ट आंसर। ये बहुत इजी होता है, ये फर्स्ट आंसर है, दैट इज ओके। इन द नाउ सेकेंड क्वेश्चन है, यहाँ पे सल्फर दिया है, सल्फर, ठीक है। सल्फर यहाँ पे कितने हैं, 8 एटम्स ऑफ द सल्फर गिवन हियर। नाउ मूव करते हैं, दैट इज ओके। सल्फर, यहाँ पे सल्फर का जो मास होता है ना, मास, ओके, मास कितना होता है, दैट इज वी कैन सी हियर, दैट इज 32। सल्फर का मास कितना होता है 32, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स हियर इज 8 एटम्स, ओके। सो 8 इंडिकेट द मास विल बी मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ एटम्स, तो कितना हो जाएगा 32। सो विल गेट 8 टू द 16, कैरी कितना 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, 256 ग्राम पर मोल। दिस इज द सेकेंड आंसर, ओके। यहाँ पे कितना है, थर्ड क्या है, P4, ओके। P4 का क्या देखते हैं, P4 दैट इज गिवन हियर वैल्यू, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास दैट इज 31 होता है, तो यहाँ पे कितना है, P का कितना एटॉमिक मास कितना होगा, दैट इज 31, और हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं फास्फोरस के, दैट इज फास्फोरस दैट इज 4। तो क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 31 करेंगे तो कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, that is the 124 gram per mole, okay. This is the what at molar mass of a phosphorus, okay, having a 4 atoms of a phosphorus, okay. So we can see here, now we have to find out HCl। तो पहले दोनों को पार्टिसिपेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, मास कितना है 1 एटम से, तो कितना मास आ गया 1 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ पे कितना होगा, इसका मास होता है दैट इज 35.5।
नाउ इसको ऐड करेंगे तो 1 + 35.5 दैट इज इक्वल टू 36.5 ग्राम पर मोल। सो दिस इज द, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है। नाउ क्या है, HNO3। HNO3, पहले तो इसमें 3 एलिमेंट से सबके क्या करेंगे, मास निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, हाइड्रोजन कितना है 1, इसका हाइड्रोजन का मास कितना 1 हो गया। और ये भी देखना है कितने नंबर ऑफ एटम्स है ना उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स में, कितने नंबर ऑफ एटम्स है। तो यहाँ पे कितना है 1, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन 1 एटम है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास 14। ओके, नेक्स्ट क्या है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का दैट इज द मास कितना होता है, मास ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स, कितने एटम्स हैं 3। तो क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया 48, कितना हो गया 48 ग्राम। ओके, नाउ इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज सिंपली है ये ऐड करना है, लेकिन आपको बेटर तरीके से एक ही लाइन में लिखना है। दिस इज सिंपल मेथड दैट यू नीड टू नो। नाउ 1 + 14 + 48, now 8 4 13, carry 1, and now 4 1 5 plus 1 6 63 gram per mole. Okay, mole. Okay, this one something. So this is the question number 6 answer. Okay, you can find out very easily what is the molar mass. It is nothing but the given compound में जितने elements रहेंगे उनके mass को add करना है बस, and that is the answer. So now we'll move on the question number 7th. What is the question number 7? Let's discuss. So here the question number 7th given here. What is the mass of particular things is given here. 1 mole of nitrogen atom. फर्स्ट है 1 mole of nitrogen atom, तो 1 mole यहाँ पे दिया है, n इज इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ मोल कितना है 1 mole of नाइट्रोजन एटम, ठीक है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ओके, सो हमारे पास फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स टू फाइंड आउट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ओके, सो हियर वी कैन राइट इट इज डिनोटेड बाय n and it is equal to small m upon capital M. Okay, so now n defined as the number of moles present into the atoms or the molecules. Okay, it is defined. So now here m upon capital M करते हैं, तो पुट करते हैं n is equal to gain 1 moles of nitrogen atom. Okay, तो 1 लिखते हैं, नाइट्रोजन एटम 1 मोल है, ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट इज द, नाउ फाइंड आउट, हमें फाइंड आउट करना है मास, ठीक है, मास फाइंड आउट करना है। तो क्या है, दैट इज m upon what is the molar mass here is given nitrogen atom 1 mole of nitrogen atom का मास क्या होगा, that is the 14। so हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, m is equal to 14 ग्राम। this is what 1 mole of nitrogen atom nitrogen atom contains 14 gram of a nitrogen. Okay, 14 gram nitrogen atom. so now नेक्स्ट मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयन, द सेम फार्मूला विल बी अप्लाई। दूसरा क्या है 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम आयंस। सो नाउ इट इज सो इजी दैट वी कैन अंडरस्टैंड हियर। एल्यूमिनियम यहाँ पे दिया है, देखो कितना दिया है 4 मोल, तो n इज इक्वल टू क्या होता है m अपॉन कैपिटल M। so now here is a n is equal to given, that is the 4 moles, we are putting the value of 4 is equal to aluminum atom, what is the atomic mass of aluminum atom, that is m लिखेंगे यहाँ पे, and capital M that is the 27। so we got here m is equal to now 4 multiply 27, we got here 4 7 जा 28, carry 2, 4 2 is 8 plus 2 10, 108 gram। so we can see here that 4 mole of aluminum atoms, 4 mole of aluminum atom is equal to 108 gram, that is the mass। okay, we can see here the mass of 4 mole of aluminum atom is 108 grams। now move करते हैं क्वेश्चन नंबर, that is in third 7th में थर्ड है, that is
10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट, 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट यहाँ पे दिया है, 10 मोल ऑफ sodium sulfate Na2SO3 it is given. Okay, now let us find out here 2SO। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं मोलर मास ऑफ सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 नंबर ऑफ एटम्स कितना है, सोडियम का कितना है, नंबर ऑफ एटम्स 2 है और मास कितना होता है, दैट इज 23 प्लस सल्फर का कितना हो जाएगा 32, 1 एटम्स है प्लस ऑक्सीजन दैट इज द 3 एटम्स विल बी मल्टीप्लाइड द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 प्लस 32 प्लस 48, 8 to 10 plus 6 18, 16 carry 1, 4 3 7 plus 4 11 plus 1 12, 126 ग्राम। ये हमारा क्या आ गया, दैट इज द मास ऑफ सोडियम सल्फेट। ओके, सोडियम सल्फेट, इट इज द मास ऑफ सोडियम सल्फेट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट 10 moles of sodium sulfate how many mass it will contains. Okay, so here we have n is equal to m upon capital M. Okay, so n is equal to 10 is equal to m, that is m upon, so putting the value here, that is the m upon capital M. What is the 126? So where we got cross multiplication, we got m is equal to 126 multiplied 10 is equal to 1260 gram, 1260 gram. So we can see here, we can say here that 10 mole of sodium sulfate Na2SO3 contains 1260 gram mass. That is the mass of 10. So mass of 10 mole of sodium sulfate is 1260 gram. Now moving for the question number 8. So here we have question number 8 that convert into the mole. Okay, so we have the formula. एक मैंने आपको formula बताया था अभी, in the previous question it was given a formula by me that number of moles n is equal to number of moles in a number of moles क्या define करता है, that is the amount of substance present. Okay, during the chemical reaction amount of substance क्या present है ना chemical reaction में, उससे क्या बोलते हैं, that is number of moles। एक सिंपल यूनिट है, ठीक है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। दैट नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, अब बोल सकते हैं, ठीक है, एम होता है अपान कैपिटल एम, जो एम डिनोट करता है तो गिवन मास एंड दिस इज द मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास, एंड ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। सो यूजिंग दिस फार्मूला विल गेट द आंसर वेरी इजिली ऑफ ईच क्वेश्चन। ओके, जो यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है 12 ग्राम ऑफ O2 ऑक्सीजन गैस। ओके, ऑक्सीजन गैस। सो नाउ वी हैव व्हाट, we have to find out the moles, how many moles it will consist. Okay, so now we can find out here n is equal to, given it is here, and we have to find out n is equal to, what is the m, given mass is a 12 upon that is the oxygen 1 atom। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऑक्सीजन का एक एटम का मास कितना, मोलर मास कितना है, यहाँ पे 2 एटम से तो कितना हो जाएगा, 1 एटम का मास होता है 32, आई मीन दैट इज द 16, और 2 एटम्स हो तो कितना हो जाएगा 32, तो डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द आंसर। फर्स्ट आंसर विल बी 0.375 मोल। अगर इसको डिवाइड करेंगे विल गेट हियर 0.375 मोल। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज गिवन हियर, अगेन द पुटिंग द वैल्यू द सेम वैल्यू, सेकंड 20 ग्राम। ओके, सो वी कैन सी हियर 12 gram of oxygen atom consist 0.37 mole. Okay, this is the amount of substance which is present in the 12 gram of oxygen. Next है 20 ग्राम ऑफ H2O। तो H2O को पहले तो हमें मॉलिक्यूलर मास फाइंड, 20 सेकेंड है, हम इरेजिंग इट। ओके, इसको इरेज करते हैं ना, सेकेंड फॉलो करते हैं यहाँ पे, 20 ग्राम ऑफ वाटर, दैट इज द 20 ग्राम ऑफ वाटर में कितने प्रेजेंट होंगे मोल्स, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज द, इसका पहले मास निकालेंगे, मोलर मास कितना हो जाएगा, H2O बराबर क्या हो जाएगा 2 × 1 + 16, दैट इज द 2 + 16 दैट इज द 18 ग्राम। ओके, सो दिस इज द 18 ग्राम। नाउ नेक्स्ट we have to find out the moles, m small m upon capital M. Okay, so here n, what is the m, given m, that is the 20 upon, that is the mass, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मास कितना हो जाएगा, मोल 18, कितना आया 18। सो द राइट आंसर इज दैट, इसको डिवाइड करेंगे यू विल गेट 1.11 ग्राम, 1.11 मोल। ओके, सो दिस इज द
This is the question number 8, third answer. Okay, the second answer. Now move करते हैं question third answer के लिए. What is the third answer? It's 39 minutes. It's a long video. Now move करते हैं for the third answer. Now here is a given here CO2. तो 22 ग्राम ऑफ CO2 का पहले हम मास निकाल लेंगे. What is the mass? Molecular mass. ओके, सो कार्बन कितना है 1 एटम्स, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 16, 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, वी गॉट हियर 2 2 4 3 1 4 44 ग्राम. ओके, so this is the mass of carbon dioxide, molecular mass of carbon dioxide. Okay, but find out करना है moles. The formula is small m upon capital M. Okay, small m upon capital M. Now here is the given mass is 22 upon that is 44 is reduced to the 1 upon 2 is equal to 0.5 mole. So this is the answer number. This is the answer of question number 8. Okay, it was so easy, you can understand. Now we'll move for the question number 9. So this is the question number 9, which is given here. Okay, the video is being too long. So now the question number 9 is given here. Calculate the number of molecules of a sulfur as at present in the 16 gram of solid sulfur. Same formula will be applied here also. That we know that n is equal to क्या होता है m upon capital M. Okay, so here we have to find out the first number of moles. What is the given इस mole में देखें नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है. ठीक है, इन 1 मोल ऑफ सल्फर ऑक्सीजन इसमें कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मोल्स वो फाइंड आउट करते हैं. एंड आफ्टर दैट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी मल्टीप्लाइड बाय अवोगाद्रो नंबर 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23. ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे. लेट अस फाइंड आउट द मोल्स. ओके, सो एन वी हैव टू फाइंड आउट एन. व्हाट इज द एम गिवन हियर 16 ग्राम अपॉन मास ऑफ S8 एटम ना. तो हमारे पास 1 मोल ऑफ सल्फर एटम बात कर सकते हैं. 1 मोल ऑफ सल्फर कितना हो जाएगा, दैट इज द सल्फर S8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एटम्स दैट इज 8 मल्टीप्लाई 32, 8 2 जा 16 कैरी 1, 8 3 जा 24 प्लस 1 25, तो 256 ग्राम कितना आ जाएगा 256 ग्राम. तो हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे. ठीक है, 200 so we got it is the molecule. Okay, it is the something. Okay, that we got here 16 upon 256 16 upon we can 16 1 ja 16 16 6 ja 16 16 ja 256 we got here 1 upon 16. Now to divide it, so now here we have okay 1 upon 16, this is 1 upon 16. Okay, number of moles is 1 upon 16. Now we have to find out number of molecules of S8 is equal to 1 upon 16 multiply, we'll have to multiply by the Avogadro number, that is the number of molecules 6.023 multiply 10 power 23. Now after multiplying here इसको मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट हियर 6.023 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 अपान कितना हो जाएगा 16. इफ विल डिवाइड इट ना विल गेट हियर 0.376 मल्टीप्लाई 10 पावर 23. नाउ फॉर द साइंटिफिक वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे 3.76 मल्टीप्लाई 10 पावर 23 मल्टीप्लाई 10 पावर -1. ये इस साइड गया तो माइनस में हो जाएगा और इस साइड आएगा तो प्लस डेसिमल ना. सो विल गेट हियर आंसर 3.76 multiply 10 power 22. This is the number of molecule consist in S8 sulfur 8. This is a sulfur. ये इतना number of molecules consist in 3.76 multiply 10 power 22. Now moving for the question number 10. So this is the question number 10 given here. This is last. Okay, this is the question number last given here. Now. So now here is given calculate the number of aluminum ions present in a 0.051 gram, that is 0.051 gram. Let us so I was looking in the textbook 0.051 gram of aluminum oxide. Okay, so we can find out here
let us find it. This is the chemical formula of aluminum oxide, Al2O3. Okay, this is the chemical formula of aluminum oxide. And now what is the aluminum? That is the Al plus 3. Okay, charges. Now let us find out the mass of aluminum oxide, that is the 2 multiply, that is the aluminum 27 plus 3 multiply, what is the mass of oxygen atom? That is the 16. So we got here 27, 2 are 2, 7 are 14, carry 1, 2 2 are 54 plus 16, 3 are 48. Now we got here 8 4 12, carry 1, 4 5 9 plus 1 10, 102. Okay, we can write 102 U, or that is the gram. Okay, U, this is the mass of aluminum oxide. Okay, now let us find out the moles, number of moles present into the given compound. इसमें नंबर ऑफ, ये मास कितने, इसमें कितने मोल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो फाइंड आउट करते हैं। मोल्स इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज ए small m upon capital M, small m upon capital M. Now what is the unit given here, 0.051 upon, that is the, what is the mass, molar mass of aluminum oxide, that is 102. Let us calculate here, 51 upon, removing this point, 102 multiply 1000. Okay, so we got here 51 2s, we got here 0.5 multiply 10 power minus 3. We can write here 5 multiply 10 power minus 4, 5 multiply 10 power minus 4 mole. Okay, now we have to find out, we can see here is the, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में इतने मोल्स है, ठीक है। अब इस मोल में अब हमें फाइंड आउट करना है एल्यूमिनियम इन 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मोल में कितना होगा, ठीक है। तो हमें पता है कितने एल्यूमिनियम, 2 एटम्स है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, टू, दैट इज द 5 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 मल्टीप्लाई 2 मोल ऑफ aluminum ion. Okay, 2 mole of aluminum ion. So we here multiply 5 multiply 10 power minus 4 multiply 2 multiply 6.023 multiply 10 power 23. Calculating it. Okay, now calculating it, will get here 5 to the 10, 5 to the 10. Just solving here, we got here 5 multiply 2 multiply 6.023 multiply 10 power 23 multiply 10 power minus 4. It wasn't looking well. Now just solving above. Okay, so we got here, ऊपर solve करते थोड़ा square इस करके, we have a very sort of, now here we have 5 multiply 2 multiply 6.023 multiply 10 power. Now इसमें अगर subtract करेंगे 23 में से 4 कितना आएगा, that is the 7 and 1 17. What 17? That is 17. Okay, no, that is this wrong being happening. So here subtracting, we got here, that is the 19. Now multiplying it. Okay, 10 multiply 6.023 multiply 10 power 19. Okay, so यहाँ पे 1 पावर है, इसको ऐड कर देंगे तो 6.023 multiply 10 power 20 molecules. Okay, so this is the aluminum ions present into the 5 multiply 10 power minus, ये present है, ये 2 atoms of 2 moles of aluminum ion present है aluminum oxide में. This is the answer number 10. Okay, now this was something about the exercise atoms and molecules. It was taken from the class 9. I hope that you will understand, and thank you for watching. Bye bye.